ये सवाल आपको कांग्रेस प्रेसिडेंट और जो कांग्रेस की मध्य प्रदेश की लीडरशिप है उनसे पूछना चाहिए। मेरा ओपिनियन है, अगर वो लोग खरीदे गए हैं, पैसे से खरीदे गए हैं, तो उन पे कैसे कहा जाए, उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया से सागर चौक से। हेलो सर, योर मगर ये छोटा क्यों था? ये सवाल छोटा कैसे था? मैं सोच रहा था ये छोटा कैसे है। हाँ, मतलब इसको आप और लंबे तरीके से पूछ सकते थे। नहीं, आई अप्रिशिएट योर सेंसिटिविटी। आपकी जो सेंसिटिविटी है उसको अप्रिशिएट करता हूं मैं। नहीं, एक मिनट, एक सवाल का कोई सप्लीमेंट्री नहीं होगा प्लीज। हाँ जी, सागर चौक से प्लीज। सर, purposes and aims of your yatra have been well conveyed because you have already told it multiple सागर, वन times. सेकंड प्लीज। कोई वीडियो नहीं लेगा प्लीज, कोई फोटो नहीं लेगा, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगा प्लीज। आप अपना मोबाइल बंद कर दीजिएगा प्लीज। हाँ सागर। But as you have already completed something around 2,500 kilometers of yatra and through 7 states, and apart from the after this, what organizational changes you want to be made in your organization? Because second week of the December is very important. Your yatra gonna enter Rajasthan, and result of Himachal Pradesh, Gujarat will be delivered on 8th of December. So what organizational changes you want to be made in organization? I don't think we've done 2,500 kilometers yet. I think we've done 2,000. Is that correct? I think we've done 2,000. And the spirit of the yatra is to make the country focus on the attempt to change its nature. This country has never been a fearful country. In its worst time, India has had much worse times than now. During the British, we had a much worse time. In its worst time, India was never a scared country. It was a brave country. And the people of India have a particular culture. And this culture is known all across the world. It is a culture of compassion, of respect, of affection. And this is our biggest strength. Nobody thinks that anger, hatred, arrogance are strengths of India. Nobody. You can go and ask anybody. You can ask किसी गांव वाले से पूछ लीजिए, अरबपति से पूछ लीजिए, अमेरिका के राष्ट्रपति से पूछ लीजिए, उनसे पूछिए भैया बताइए हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ क्या है? करुणा, भाईचारा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। तो यात्रा का यह लक्ष्य है। आप इस बात को बिलीव नहीं करते हो, मगर ये इस यात्रा का लक्ष्य पॉलिटिकल नहीं है। इस यात्रा का लक्ष्य देश को याद दिलाना, इस देश की नेचर क्या है, इस देश की संस्कृति क्या है, इस देश का इतिहास क्या है, इस देश का डीएनए क्या है, यह है इस यात्रा का लक्ष्य। अब उसमें पॉलिटिकल रिपरकशंस हों तो होंगे, मगर जिस स्थिति पे आज हिंदुस्तान है, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो देश को बहुत भयंकर नुकसान होने वाला है, इंटरनेशनल लेवल से और इंटरनली। इसलिए हमने ये यात्रा की है। आईबीसी से वत्सल श्रीवास्तव। नहीं, प्लीज प्लीज, नो, आई हैव एक्सप्लेन्ड टू यू। नहीं, व्हाट, रिपीट इट प्लीज। आईबीसी से विशाल चलने के बाद क्या ऑर्गेनाइजेशनल नहीं, I answered your question. I answered your question. No, I'll just, Jairam, give me a second. I answered your question. My answer to your question was, this yatra is aimed at sending a particular message across to the country. I am not thinking about anything
other than completing this yatra and listening to the people of India while I'm walking this yatra. That's all I'm doing. Nothing else. I'm not thinking about Congress. I'm not thinking about organization. I'm not thinking about election. I'm not thinking about anything. This is, in my mind, this is tapasya. I'm not going to think about anything. This is my tapasya in my mind to stand up for the idea of India that is being attacked and destroyed. आईबीसी से वत्सल श्रीवास्तव। राहुल जी नमस्कार। 2018 में आपकी सरकार बनी, यहाँ पे 15 महीने के बाद वो सरकार चली गई। परिस्थितियां बदली सर इस स्टेट की पॉलिटिकल पूरी तरीके से, और जब आप हिंदी हार्टलैंड में आ रहे थे तो क्या आपको उम्मीद थी कि इतना समर्थन या इतना उत्साह जो लोगों में मिला है आपको, वैसा मिल पाएगा यहाँ पे? मैं केरला से निकला तो मेरी माइंड में था कि भाई केरला को अब कोई नहीं हरा सकता। मतलब ये जो रिस्पांस मिला है केरला के बाद तो मिल ही नहीं सकता। महाराष्ट्र ने उनको गिरा दिया, और मैं सच बोलूं तो मुझे लग रहा है जो कल इंदौर में हुआ वो मैंने महाराष्ट्र में नहीं देखा। तो मुझे लग रहा है कि जो पब्लिक रिस्पांस मध्य प्रदेश में है वो बाकी स्टेटों से आगे है, ये मेरी फीलिंग है। और मध्य प्रदेश के लोगों के दिमाग में, माइंड में ये यात्रा बहुत गहरी घुस गई है। आपसे गुजारिश करूंगा प्लीज सप्लीमेंट्री मत लीजिएगा। ओके। अरविंद तिवारी। नमस्कार राहुल जी। मैं सुन लेता हूं, लोगों की बात सुन लेता हूं, मेरा नेचर है। मध्य प्रदेश 7वां राज्य है जहां आप हैं, मगर अगर करना जरूरी होता तो कर भी देता हूं। मध्य प्रदेश 7वां राज्य है जहां आप अभी हैं, और लगभग 2015 किलोमीटर की यात्रा आप कर चुके। 2000 इंदौर में थे आप, और 15 किलोमीटर आज यात्रा। इस पूरी यात्रा का सबसे सुखद क्षण कौन सा है? क्या आप वो हमसे शेयर करेंगे? इस पूरी यात्रा का सबसे सुखद क्षण। बहुत सारे क्षण हैं। एक नहीं कह सकता हूं। ऐसी यात्रा पे कोई निकलता है, मैंने ये पहले कभी नहीं की थी। छोटा काम नहीं है, तो पहले निकलते हैं, पहले 5-10 दिन बाद पता लगता है कि भाई 3700 किलोमीटर चलने हैं। बीच में मेरे घुटने में दर्द होना शुरू हो गया। मेरी पुरानी इंजरी थी, पहले ठीक हो गई थी, वो थोड़ी डिस्टर्ब हो गई, तो काफी मुझ में डिस्कम्फर्ट था, डर था कि भाई ये चल पाऊंगा या नहीं। और फिर आस्ते आस्ते उस डर का सामना किया कि भाई चलना पड़ेगा, सवाल ही नहीं उठता। क्षण अच्छे होते हैं कि आपको कोई चीज डिस्टर्ब कर रही है और आपने उसको आप अडेप्ट कर गए तो अच्छा लगता है। एक बार मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सबसे अच्छा क्षण था, क्योंकि बहुत सारे थे, मगर जब आपने सवाल पूछा वो ये क्षण याद आया कि मेरे पैर में काफी दर्द, घुटने में काफी दर्द हो रहा था, मैं चल रहा था और बहुत सारे लोग मेरे से बात कर रहे थे। धक्का लगता है, ऐसे धक्का लगता है, तो जब धक्का लगता है तो चोट लगती है। तो मैं कहता रहता हूं थोड़ा आप साइड में चलिए, मतलब ऐसे कहता हूं। ज्यादातर लोग मानते नहीं हैं, बट मैं कहता रहता हूं। तो फिर एक छोटी सी लड़की आई, मुझे याद नहीं कहां था, कर्नाटक में था या केरल में था। एक छोटी सी लड़की आई और मुझे काफी दर्द हो रहा था उस टाइम। तो वो आई और वो साइड में चल रही थी। मैंने नोटिस किया वो मेरे अंदर नहीं आ रही थी, मतलब वो बाकी लोग सब ऐसे आ रहे थे, वो थोड़ा दूर चल रही थी। मैंने नोटिस किया। फिर उसने चिट्ठी निकाली और उसने कहा देखो ये आप पढ़ लीजिए। तो जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया, उसने कहा नहीं आप अभी मत पढ़िए, अभी आप चल रहे हैं, ये आप बाद में पढ़ना। तो फिर मैं चल रहा था, वो चली गई। फिर मैंने वो चिट्ठी, थोड़ी देर बाद मैंने सोचा देखो मैं देख ही लेता हूं क्या है उसमें, क्योंकि
जिस भावना से उसने मुझे बोला, छोटी सी लड़की थी, शायद 6 साल की 7 साल की लड़की, जिस भावना से उसने मुझे बोला, मुझे अच्छा लगा कि ये इसमें कुछ है। तो फिर मैंने खोला, तो फिर उसमें लिखा था कि देखिए, आप ये मत सोचो कि आप अकेले चल रहे हो, मैं आपके साथ चल रही हूं। मैं चल नहीं पा रही हूं क्योंकि मेरे माता पिता मुझे चलने नहीं दे रहे हैं, मगर मैं आपके साथ चल रही हूं। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उदाहरण है, और ये छोटा सा उदाहरण है, ऐसे मैं आपको मतलब हजारों उदाहरण दे सकता हूं। ये